Hello and welcome at Exam Zone 24/7. This lecture is in continuation with the earlier lecture we were continuing related to previous year questions of SBI CVO, which will let you know the way the patterns these questions are asked, what topics you need to study more, focus on more, and what you may skip. We will be continuing from the question where we have finished the last one, and I believe that is the 30 questions we have discussed, more than 30, and this is 32. See, this question is especially we have discussed today was in SBI training material. Okay, this was there in SBI training material. The question number 32 related to interest rate spreads. The question number 32, which shows the interest spread. Interest spread is actually uh, lending rate minus interest paid on deposits. It is similar to the net interest margin, which is the total interest income minus interest expenses. Okay, so uh, now we will be hope you can see the question number 33. The company has an advances. This question is related to current ratio. A company has an advances of rupees 40 lakhs. See, this PDF has already been shared to you. You are advised to go through this because a number of questions are there for which the answer are not correctly marked, and you may get confused with your answers what you expecting may be the correct. If you are participant, as it was not refined, and whatever questions they have marked, whatever answer they marked, that placed as it was shared by the candidates. So if you have this paper, you have enrolled in the batch, you must match your answers. Match your answers. Okay. Now a company has advances of this and assets of this. See, current ratio ठीक है, is equal to current assets by current liabilities. If nothing is mentioned about the type of what type of liabilities is there, whether it is a short term or long term, and you are not able to conclude whether these liabilities or assets which are arising out of the description of the question, then you must get it as a current assets. Okay, then the current assets is 10 crore and a loan having 40 lakhs, 10 lakhs and 40 lakhs. This was very simple question. It is 1 by 4. It is 0.25. Okay. Now, when a bank recovers an overdrawn amount from a linked amount, okay, recover overdrawn an account from a linked account, it's exercising is a right of set off. Set off means setting off the liabilities from the assets. Okay, so suppose he has paid
5,000, and this 500, and there is a balance in the saving account 1,500. This 500 bank will deduct to set off this. This will be called as the right of set off. Okay. See, I am not taking this as a live session because in the live session it takes longer hours to discuss with everything with answering the candidates' queries. This may kill your time at this very golden time is running on. You may be busy in revising your syllabus, your questions, whatever study material you are having. Huh? Now, the next question, 35. Wait a minute. Okay. Which of these accounts normally shows a debit balance? मतलब ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें जनरली डेबिट देखो, टर्म डिपॉजिट तो कस्टमर का पैसा है, उसमें डेबिट होने का कोई चांस नहीं है, डेबिट में रहता भी नहीं है. सेविंग अकाउंट इज आल्सो द सेविंग्स ऑफ द कस्टमर विच इज शोइंग दिस इज नॉट ओके. Recurring deposit and term deposit are similar things. Okay, this is a one time deposit, this is multiple times with the time period we are depositing regularly. This is also not debit balance. The only is cash credit account. This is the facility of loan. Okay, facility of credit availed by bank. See, which account will be the debit balance? ऐसा कोई भी बैलेंस, ऐसा कोई भी अकाउंट, ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो बैंक से आपने लोन के फॉर्म में लिया है, दैट विल बी एज ए डेबिट बैलेंस. ओके, इन दिस केस, ठीक है, टर्म सेविंग एंड रिकरिंग डिपॉजिट, these are not the loan accounts. Cash credit account is there and that will be the debit balance. Which of the following is not a money market instrument? See, the money market instruments are generally the instrument of shorter tenure. Okay, shorter tenure, less than 1 year. Treasury bill, yes, treasury bill a money market instrument. Okay, commercial paper is also a money market instrument. Certificate of deposit, yes, it is also a money market instrument. Equity share is not money market instrument. Why? Because suppose there is a company, you have purchased the shares of this company either through, then you became the shareholder. Okay, equity has परपेचुअल वैलिडिटी, मीन्स जब तक कंपनी है तब तक वो इक्विटी ऐसी वैलिड रहेगी. तो इस तरह से इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. आज आपने इक्विटी खरीदी, आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर, 100 ईयर्स के बाद आप सेल करो, दैट इज अप टू यू. ओके, further this is also like if you are purchasing equity share, if through a private placement basis and directly involved, you are sharing in the capital infusion of the company. This is also not part of a money market. Okay, that you can say that is the part of the capital market. This is also you can say this is money market also doesn't if you know that treasury bill, certificate of deposit, these, okay, call money, notice money, term money, these are the part of this. Okay, in either are survivor. See, in the can authority be transferred to children before maturity? अभी ये बोल रहा है एक टर्म डिपॉजिट है, वो आइदर एंड सर्वाइवर बेसिस पे है. ओके, तो चलो दो लोग हैं उसमें, तो कोई भी ऑपरेट करेगा. ओके, या जो सर्वाइवर होगा लास्ट में जो वो,
तो इसका कहने का मतलब है कि क्या अथॉरिटी, मतलब ये टर्म डिपॉजिट अभी किसी के नाम में ट्रांसफर कर सकता है अपने बच्चों के? नो, नेम ट्रांसफर नहीं अलाउड है। ओके, अथॉरिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर इसको ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू क्लोज द टर्म डिपॉजिट। ओके, देन मेक अ न्यू। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखें। सही। एन अकाउंट मूव्स टू डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स हमने अभी देखा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग मटेरियल में भी ये था। डाउटफुल असेट में कब जाएगा? जब वो एनपीए, ठीक है, 12 मंथ तक अगर एनपीए रह गया वो 1 ईयर तक, तो देन इट विल मूव टू डाउटफुल असेट्स। ओके, द let me zoom this, the question number 38, the question number 38, an account, see what is the status? First, account will turn to NPA. See, SMA is not NPA, I already discussed with this. NPA, then doubtful. Okay, and then loss. Doubtful has 3 categories, but if 12 month is NPA, then it will come to doubtful. Okay, which detail is not mandatory for NEFT and RTGS transactions? C. You need account number while sending. IFS code is required and beneficiary name is required. Without these details, your system will not allow to process the transaction. PAN number is not mandatory. Actually, especially beneficiaries, PAN number is not mandatory. See, sometimes you may get confused that KYC should be there. Yes, that is the part of, but to initiate the transaction, PAN number is not required. It is up to the bank whether it takes the PAN or not. And also the PAN is not mandatory. And further you need to know PAN is also not officially valid document. Okay, PAN is not under OVD. According to latest available data, RBI's projection, सी ये क्वेश्चन हमने अभी PDF में शेयर किया हुआ है, और ये अभी क्या प्रोजेक्शन रहेगा ग्रोथ का? ओके, लाइक नोमुरा, SBI, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, RBI. Okay, then you may go through the latest detail. मीन्स अब इससे हमें ये पता चलता है कि जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन है जो जनरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, मूडीज और इन सब का, उसका नहीं पूछा जाता। ओके, मोस्टली क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस का पूछा जाता है, जैसे एसबीआई, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अगर जीडीपी ग्रोथ पे कोई डेटा देते हैं तो आपको वो याद रखना है। आईएफएस कोड, ठीक, आईएफएस कोड, और यू सिंपली से आईएफएस कोड का सी, आईएफएससी क्या होता है? ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द मनी, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन, बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन, स्पेशली द बैंक ब्रांचेस। ओके, IFS accompanied by the account number, you may send the payments. A minor is not permitted to open account. See, minor joint account open कर सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता है, आप सबने ब्रांच में किया होगा, लेकिन बिजनेस अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज फॉर द ट्रांजेक्शन, even for the transactions done in the minor's account, minor is not binding. ओके, तो अगर ये बिजनेस अकाउंट खोलता है और किसी को चेक साइन करके दे दिया, तो अगर उसमें कोई भी फॉल्ट रहता है, देन देयर विल बी नो लीगल एक्शन ऑन माइनर्स, बट
others may face the legal action. That's why ये इंटरव्यू में भी पूछा गया था एक बार, आप माइनर का करंट अकाउंट ओपन करोगे, देन नो। उसके बाद इंटरव्यू में ये पूछा गया था, बट माइनर कैन बी पार्टनर, देन व्हाई यू कैन, माइनर कैन बी ए पार्टनर ना, माइनर कैन बी ए पार्टनर, देन व्हाई यू कैंट open account. Minor can be a partner but only for benefit of that partnership. मतलब अगर उसको कोई प्रॉफिट शेयरिंग देना है तो आप उसको दे सकते हो, बट ही विल नॉट बी एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। ये आपका आंसर होना चाहिए। नाउ which of the section banking regulation act see, there are RBI act and banking regulation act, there is the CRR, there is the SLR. SLR remains with the bank, CRR stand with SBI in the cash form. There is section 42, reverse this section 24, that will be equal to this. Okay. हु सेट्स द इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक सेविंग अकाउंट? बैंक सेविंग अकाउंट बैंक खुद ही इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आ रहा होता, तब भी अगर आप दिमाग लगाते तो पता चलता कि हर बैंक में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो इसका मतलब है कोई भी एक ऐसी एंटिटी नहीं हो सकती जो बैंक को इंटरेस्ट रेट डिसाइड करे। ओके, हाउएवर they may link the interest rate with some benchmark for their reference, but whatever ultimate interest is to be paid to the saving account depositors is with the bank only. Okay, in this case that is the bank itself is the answer. Most banks credit saving accounts, हाँ, interest rate. Okay, crediting saving account, see, calculation of interest rate already discussed is on daily basis, and and credit is given either quarterly, or you may the less than quarterly, even you may credit daily, it is up to you, but calculation is on daily basis and credit is on quarterly basis. The minimum priority sector lending target we have already studied this year. This is very important to study priority sector lending guidelines. See, priority lending guidelines. Okay, this is important. 18% to this. Further, there is another category where which small and marginal farmers to be given out of this amount. Right of set off has already been discussed, means bank may debit from one account and credit to another account. This is the right of set off. See, right of set off and right of appropriation both are different thing. Okay, do not confuse with the right of appropriation and set off. Which deposit is excluded from DICGC insurance? Individual deposits are covered from DICGC insurance, but interbank deposits are not covered. Means if one bank is depositing to another bank,
then this is not covered. Even if NBFC is depositing fund with, suppose किसी suppose some suppose some individual banks is depositing, suppose some individual banks is depositing or NBFC is depositing the bank, then this is also not the case. Okay, this is also not covered from DICGC. Okay, senior citizens seeking TDS relief must file. This was asked. Okay, there are two forms, 15G and 15H. If you would not deposit, the higher TDS deduction will be available. Okay, for the senior citizens it is H, for others it is G. How you may learn this? The first will be person will be less than 60 years. For less than 60 years it will be G. G is coming the first. Later it is H. It will be greater than 60 years, and after G it is H. Which country was among the original signatories of ASEAN? C. ASEAN, BRICS, okay, Quad. All such members of ASEAN Clearing Union, ACU, okay, SCO, Shanghai Cooperation Organization, okay. You must learn all member countries of such, and for the World Bank, number of members, new BRICS member, new ADB member, new World Bank member. You must learn all this. See, National Water Informatics Center, this was inaugurated. Wait, this is actually based on headquarters of AIFI's world organizations एंड अदर्स. कैटेगरी इसकी ये है, इस कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द न्यू दिल्ली. However, such questions which has been already been asked one time, it is very rare that it will be asked again. So, authors, books and authors. For books and authors, I have told that some books which are internationally or nationally accredited, okay, then you must go through that book. That is also part of banking, other current affairs, okay, books and authors. The administrative vigilance, no, but Ministry of Housing and Urban, whatever scheme is going on, you may go through. The question number 55, Parivahan portal, it was the recent portals, means portals launched category. See, you are seeing that almost every topic, at least one question is there. Okay. Multi Commodity Exchange, MCX CCL, after receiving SEBI approval, it has starting trading in derivative segment. Okay. How large was the seed fund launched by IN Spacey to support space startup? Okay. You need to say whatever. Suppose what is the funding for new Pradhan Mantri Awas Yojana, Manrega, total funding for this, it may be asked in न्यूमेरिकल्स. ओके, ऐसे जितने भी
स्टार्टअप या ऐसे कुछ भी स्कीम्स गवर्नमेंट की ला की गई हैं, तो उनका फंड आउटले आपको याद रखना है, फंड आउटले। ओके, कि कितना फंड गवर्नमेंट ने उसके लिए किया है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, एंड you need it need not to be discussed because it is not of importance now. See, this is related to games and sports. If this is also not related to the banking. DigiLocker is an initiative under Digital India. Yes, Skill India, Startup, and BharatNet is a different thing. Question number 60. Before declaring the dividends, banks are required to ensure that they have adequate capital adequacy ratios. Yes. देखो, नेट एनपीए बिलो 10 तो है ही नहीं, 10 तो बहुत ज्यादा है। अभी नेट एनपीए इनका पॉइंट्स में होना चाहिए, मतलब जो भी डिक्लेयर करते हैं उसके लिए नेट एनपीए अगर 10% है तो आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते डिविडेंड। ओके। हाँ, दूसरी चीज है कैपिटल एडिक्वेसी, कि फंड मेंटेन के बाद ही, अगर मेंटेन्ड है, इफ यू आर डिफॉल्टिंग ऑन कैपिटल एडिक्वेसी यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। ओके, तो जो भी मतलब पीसीए में है वो तो वैसे भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी पे डिफॉल्ट करने जाओगे तो आप सीधे पीसीए में आ जाओगे। दिस इज रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू द जनरल बैंकिंग। आरबीआई अपडेटेड द प्रोजेक्शन जीडीपी ग्रोथ डेटा। देखो, जीडीपी ग्रोथ डेटा अभी बहुत सारे ने दिया, तो मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको जो जीडीपी का डेटा दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ओके, आरबीआई, इवन एसबीआई देगा तो भी आप पढ़ सकते हो एसबीआई का एग्जाम में। ठीक है, तो वो डेटा आपको याद रखना, या हमारा मिनिस्ट्री कोई डेटा दे रही है जीडीपी का, तो वो आपको जीडीपी का डेटा याद रखना है। बाकी रेटिंग एजेंसीज अगर ग्रोथ या प्रोजेक्शन का डेटा दे रही हैं तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। ओके, वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतनी रेटिंग एजेंसीज हैं, सबका अलग अलग है, आप कितना पढ़ोगे। See, these are also the related to current affairs. The ISSA Vision 2023 award recognition in the industrial safety. Latest information, who it's a rural marketing association ऑफ इंडिया, उसके। अच्छा देखो, अभी इससे पता चल रहा है कि आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नाबार्ड है, सिडबी है, एलआईसी है, इन सबके हेड्स और हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, तो ये जब लॉन्च किया था स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड उस टाइम ही था, तो दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, यू मे लीव इट, बट दिस टाइप ऑफ फंड आपको पहले भी बताया कि ऐसे जो भी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं उनका फंड आउटले भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कितना, कितने हजार करोड़ उसमें दिए गए हैं। अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, कंप्लेंट्स अप टू व्हाट अमाउंट्स आर एडमिसेबल। ठीक है, ठीक है, तो देखो, पहली बात तो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम अर्जेंट है, अर्जेंट मतलब जरूरी है, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। सी, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, आरबीआई, रिजर्व बैंक,
इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। ओके, नाउ कौन कौन सी इंटिटीज उसमें आ सकती हैं जिसकी आप शिकायत कर सकते हो? बैंक्स की कर सकते हो, एनबीएफसी की कर सकते हो, अदर पार्टिसिपेंट्स विच आर इन्वॉल्व। ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अलग है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन अलग है। हु कैन फाइल, मतलब कंप्लेंट कौन कर सकता है? ठीक है, तो इस तरह का आपको वो 20 lakhs दे सकता है आपको कवरिंग, और 1 लाख आपको मेंटल एगोनी के लिए दिया जा सकता। ओके, इसमें कितना है? नहीं, इसको 20 lakhs कर लो, और प्लस 1 लाख फॉर मेंटल एगोनी, मतलब कि भाई आपको परेशान किया उसके लिए 1 लाख। द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये रिपोर्ट है, तो ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक इशू करता है, ठीक है, या यूनाइटेड नेशंस कोई इंडेक्स इशू करता है, तो वो वाले भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, और जिसमें स्पेशली इंडिया को कोट किया गया हो वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, या इंडिया का कंपैरिजन किया गया हो। सिटीज 2.0 ये भी करंट अफेयर्स का सेक्शन था। ठीक है, क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? ठीक है, क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट करता है। जनरली जो बैंक्स जो डील करते हैं ना, ये बैंक तो ये ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं, ये जो भी डीलिंग होती है इनकी, ये सीसीआईएल के ही थ्रू होती है। क्लीयरिंग कारपोरेशन का इंडिया, इंटर बैंक सेटलमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। Which of these is not covered under the Digital India program? जन औषधि योजना का डिजिटल इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि या जन आरोग्य योजना, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, तो डिजिटल इंडिया कैंपेन जब चल रहा था तो उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, हाउ दे विल फैसिलिटेट, व्हाट आर दियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो उस तरह की चीजें आपको पढ़नी है अगर कोई ऐसे कैंपेन लॉन्च हुए हैं तो। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ओके, द बॉडी रिकमेंडिंग टैक्स डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट्स इज फाइनेंस कमीशन। जो टैक्स जिस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से टैक्स का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज फाइनेंस कमीशन। हालांकि फाइनेंस कमीशन जो है अभी, तो अभी के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो हैं, या चेयरपर्सन जो भी है, या हु हेड्स दैट सीईओ ऑफ दिस, इस तरह का जो है आपको ये चीजें याद रखनी है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। कोई भी नई अपॉइंटमेंट हुआ है तो देन लीजन ऑफ द ऑनर, ये दिस इज आल्सो करंट अफेयर्स। नेवीज नवंबर आउटरीच प्रोग्राम करंट अफेयर्स, अंडर विच पॉलिसी मस्ट एक्सपोर्टर्स ऑब्टेन परमिशन टू शिप फूड प्रोडक्ट्स अब्रॉड। ओके, फ्रूट प्रोडक्ट्स अगर दूसरी जगह कर रहे हैं तो उस तरह किस एक्सपोर्टर को कहाँ से परमिशन चाहिए। ठीक है, सी ट्रेड, ट्रेड का रेगुलेशन पहले बताया हूँ डीजीएफटी करती है, और फॉरेक्स का रेगुलेशन आरबीआई करती है। ट्रेड एंड फॉरेक्स इज अ डिफरेंट थिंग।
Once you trade internationally, then you receive the foreign exchange which manages by RBI. Okay. CDB, see, Green Finance Scheme was an initiative of CDB to MSMEs which involved in green products means not the green color product. Green products means which are environment friendly. Okay. Which has the inaugural conference to the UNFCC. UNFCC. Okay. So this was in the news because Modi has attended such meeting. Okay. And USA made a boycott for environment and climate change. Okay. What is the टी बोर्ड ऑफ इंडिया? देखो, कोई भी इस तरह टी बोर्ड ऑफ राइस का बोर्ड राइस से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इवन समटाइम्स दे मे आस्क दैट पन्नगर वेयर इज द सिडबी ऑफिस, ठीक. व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ सिविल स्कोर? यस, typical range is 300 to 900. Typical range is this. But earlier it was asked that uh, what is the maximum civil score? Maximum civil score is 900. How is the exchange rate? ये देखो, GBP 1 to rupees 1. How is the exchange rate? Exchange rate is actually market driven rate, depends on the market. मैंने बोला था यही एक क्वेश्चन आया था कि एक जीबीपी और एक रुपी के हिसाब से कितना उसका होगा। हालांकि इसमें ये बोला है कि हाउ इट इज डिसाइडेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट आर ड्रिवन बाय द मार्केट, बट who manages this, who will be ultimate control on this exchange rate if rupee is falling freely? The RBI will come into play and will stabilize the rupees. Okay. The next question, Indian Stamp Act primarily governs, yes, stamp duties, related to the stamp duties. Ramsagar sites were in news. These are the part of current affairs. If any such current affairs running nowadays, you may go through. In the context of financial inclusion, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये 2 टाइम्स आ चुका है, इस बार भी आप नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यू नीड टू नो। इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. What are the objectives and goals are under National Strategy for Financial Inclusion as in the bulletin of RBI? You may go through, which I have already shared to you. What does PSLC? PSLC is Priority Sector Lending Certificate. All priority sector certificates has a maximum validity of 1 year and they may expire on 31st March. तो अगर आपने फेब्रुवरी में भी लिया है प्रियोरिटी सेक्टर ना, तो वो 31st मार्च को उस ईयर को एक्सपायर हो जाएगा. देखो, अप्रेंटिस एक्ट वाज अप्रेंटिस एक्ट क्यों पूछा गया कि उस साल रिक्रूटमेंट हो रहा था अप्रेंटिसेस का अंडर अप्रेंटिस कैटेगरी. नॉट ओनली एसबीआई, यूनियन बैंक एंड अदर आल्सो, even IOB also pointed out the displayed the notification under apprentice check that was see. एक बार यूएपीए एक्ट भी पूछा गया था. क्यों? क्योंकि यूएपीए एक्ट आरबीआई मोस्ट every time notifies under UAPA this entity has been banned on to receive the foreign exchange and the account has been freezed. Okay. Under prevention of money laundering and CFT, countering financial terrorism act. Okay. काउंटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म नॉट एक्ट. विलफुल डिफॉल्टर किसको बोलेंगे? देखो, हु हैज साइफन द फंड, मतलब जिन्होंने वो पैसा, ठीक है, 25 लाख से और एबो, ठीक है, देन मनली विलफुल डिफॉल्टर विल बी देयर. एंड हु हैज मिसयूटिलाइज्ड फंड्स
and or having capacity to pay the debt but not paying। ऐसे सभी लोग जिसके पास पैसा है पेमेंट का नहीं दे रहे हैं वो भी बिल्कुल में आएंगे, या जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया था उसमें पैसा यूज नहीं हुआ, पैसा दूसरी चीज में यूज हुआ, देन आल्सो इट विल कम अंडर बिल्कुल। हाउ मेनी सी हाउ मेनी, अभी तो बहुत सारा लैंग्वेज का इश्यू चल रहा है। ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन बैंक नोट्स इन इंडिया। ठीक है, आप देखोगे अगर तो असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ओके, ये इनिशियली इंक्लूडेड थे। नाउ पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो सी व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट। तो एक्चुअली इसमें 15 लैंग्वेजेस हैं, 18 कहाँ से आ रहा है, नोट में 15 ही है। फर्दर यू में क्लेरिफाई एनी रिवीजन टू दिस इज देयर। What PM Swanidhi scheme is for providing micro loans to street vendors, correct? The term lien is, what is the lien means? Lien means एक तरह से holding the property or marking a charge, okay, a charge till the loan is repaid। विजिलेंस अवेयरनेस वीक का, विजिलेंस अवेयरनेस वीक अभी फिर से चला था तो उसका थीम आप लोग याद कर लेना। ओके, फर्दर ईज, नया ईज एजेंडा याद कर लेना। ओके, इट में बी आस्क्ड। ओके, कौन सा वर्जन है ईज का। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक है तो कौन सा वीक है, कितने वीक अभी तक मंगा गए हैं। ठीक है, विसल ब्लोअर, व्हाट इज द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब यह है कि कुछ भी ऐसा बंदा जो किसी भी कंपनी के रॉन्ग डूइंग को, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं का हो, रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ पे, हायर अथॉरिटीज को, बिना किसी को पता लगाए, देन इट विल बी नोन एज विसल ब्लोअर। बैंकिंग ऑपरेशंस कौन गवर्न करता है, सी बिजनेस ऑफ बैंकिंग तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है। तो ये क्वेश्चन कुछ दूसरी तरह से पूछा गया होगा। आई बिलीव दैट someone who has sent this question is not very clear about the question। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट also describes everything in the banking what the banks will do, and RBI governs the bank. So then banking regulation act and RBI act both are responsible here for the banking। It is saying that banking regulation act which law governs banking operation in India. To what the, see what will be the business of bank, what the what the business banks can do, it is written in only banking regulation act, therefore this answer will be the correct। Money laundering involves, okay, money laundering is कंसीलिंग ब्लैक मनी ओरिजिन, जनरेटिंग लेजिटिमेट मीन्स, लेजिटिमेट मीन्स हो गया कि जो सही है, तो ऐसा भी नहीं है। लीगल चीज है ये भी ऐसा नहीं है। कैशिंग चेक्स इन, इट इज नॉट
then B option will be the correct. You can cancel the out of four options. Which document are valid for KYC verification? केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आधार पैन वोटर आईडी पासवर्ड कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट कॉलेज आईडी और डीएल वनली जहां पर लिखा है ये नहीं आएगा, क्योंकि केवल डीएल से काम नहीं चलेगा, केवल कॉलेज आईडी से भी नहीं चलेगा और केवल बर्थ सर्टिफिकेट से भी नहीं चलेगा। सी बीएसबीडीए अकाउंट के लिए आप ये आईडीज ले सकते हो, लेकिन जब तक कि बीएसबीडीए नहीं लिखा है वी विल ट्रीट इट एज ए जनरल अकाउंट, जनरल सेविंग अकाउंट विदाउट एनी रिलैक्सेशन। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या टास्क है, दैट इज आल्सो वी हैव डिस्कस। सी विलफुल डिफॉल्टर इज डिफाइंड एज ए बारोवर हु कैन नॉट पे, नो, हु इज इंटेंशनली अवॉइड टू पेमेंट। ओके यस, हमने अभी डिस्कस किया कि हु इज द विलफुल डिफॉल्टर। Banks are required to preserve customer account in detail, okay, for a minimum of 5 years. Very good. See, 5 years is there, but in certain cases, you may be required 10 years or more. Okay. In general, Banking Act में जो दिया गया है वो 5 years ही है. The primary purpose of cash reserve ratio is to ensure systematic liquidity and control money supply. Yes, it is good because due to अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में क्रेडिट नहीं जाएगा और लिक्विडिटी कम हो जाएगी। फर्दर कैश रिजर्व रेशियो अगर घटा देगा तो बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक ज्यादा लोन दे सकेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ओके, द पर्पज ऑफ दिस। बट एक्चुअल में जो कैश रिजर्व रेशियो का पर्पस था वो पहले जो बिल्कुल स्टार्ट में आया था वो आया था वार फाइनेंसिंग नीड्स। मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो सेंट्रल बैंक के पास से पैसा ले सके, क्योंकि पैसे के लिए सेंट्रल बैंक के पास पैसा होना जरूरी था। तो सेंट्रल बैंक ने किया कि भाई आपके पास जितना डिपॉजिट्स है स्पेशली वो हमारे पास एज ए फ्रैक्शन रखो, तो इसके पास भी पैसा आ गया, अब ये गवर्नमेंट को फाइनेंस कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक इस तरह से अपने पास पैसा भी रखता है। आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता कि आप केवल पैसे छाप लो और अपने पास रख दो। ओके, नेक्स्ट, अ पैन इज मैंडेटरी फॉर कैश डीलिंग्स एबो 50,000। यस, पैन इज मैंडेटरी फॉर 50,000 एंड एबो। Which of these is considered as core pillar of an effective anti-money laundering compliance program? Customer due diligence, transaction monitoring, C. Employee training, marketing companies, marketing campaigns. Which of these not considered? Yes, campaign is not. Employee can be trained for KYC AML. Okay. Customer due diligence, customer acceptance, transaction monitoring. This is the part of as the guidelines of RBI. See, this is the question which is need not to be discussed because this is just a common sense. Which statement describes UIDI's role in banking KYC? बैंक केवाईसी करने के लिए ई केवाईसी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, उसमें यूआईडीआई का इन्वॉल्वमेंट है। 109 क्वेश्चन 109, अंडर आरबीआई 2024 PSL which loan type of excluded from priority sector status? See. Yes, crop loan to farmer. Yes, priority sector. Education loan. Yes, now it is 25 lakhs. Has been revised. Housing loan up to 40 lakhs. Renewable energy up to 30 crores. It was not there. ठीक है. The limit has been exceeded. Okay. To corporates. Microcredit to SSG. Yes, it is under priority sector loan. When a 10-year-old opens a saving account alone, they are typically prohibited from availing overdraft facility. Yes, चेकबुक आप उसको दे सकते हो, चेक साइन करके वो निकाल भी सकता है, लेकिन अभी मैंने पहले बताया कि चेक उस पे बाइंडिंग नहीं है, उसका चेक बाउंस किया तो आप उसको कोई केस नहीं कर सकता, और आप उसको ओवरड्राफ्ट भी नहीं दे सकते। ओके, क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट दे दोगे, ही इज नॉट लीगली बाइंडिंग टू अस, वो नहीं पेमेंट करेगा तो आप कोई भी उसको रिकवरी एक्शन नहीं ले सकते हैं। Exceptionally high current ratio means
करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटी क्या है? असेट्स ज्यादा है तो एक तो ये हो सकता है कि उसके पास पैसा ज्यादा हो, तो लायबिलिटी कम हो। पैसा ज्यादा होगा जब उसकी प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा क्या है? पॉसिबल अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा तो फिर असेट्स घट जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सकता। एक्सीलेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ठीक है, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू करंट असेट, बिकॉज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स रिसोर्सेज आर द वर्किंग कैपिटल। आपने 6 लाख के लिया है, मतलब उसमें से आप कम खर्च कर रहे हो, कम लगा रहे हो, या ऐसे मैनेज कर रहे हो कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो ये कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ओके। हाई प्रॉफिट मार्जिन, यस, हाई प्रॉफिट मार्जिन विल बी देयर। क्यों? क्योंकि अगर आपका हाई प्रॉफिट मार्जिन होगा तो कैश आएगा, कैश आएगा, आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, असेट्स बढ़ जाएंगे। रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी नहीं, अगर करंट असेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है तो इंसॉल्वेंसी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। आफ्टर एन अकाउंट होल्डर्स डेथ, पेइंग एंड रजिस्टर्ड नॉमिनी मीन्स टू द बैंक। हाँ, सी, पेइंग द रजिस्टर्ड नॉमिनी मीन्स जो नॉमिनी होता है, ही इज ए ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर्स। मतलब पैसा तो उसको ही मिलेगा, ट्रस्टी को ही मिलेगा जिसको नॉमिनेट किया गया है, बट ही इज द ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स, नॉट द ऑनर ऑफ द फंड। ओके। सी, under section 138 which is related to the dishonor of the NI Act, who is the liable? तो जिसका चेक है, अकाउंट होल्डर जो इसको ड्रा करता है, कोई अगर चेक बाउंस हुआ तो नोटिस उसको ही जाएगी। ए बी सी, अगर बी ने आपको ए ने बी को दिया चेक, ए इज अकाउंट होल्डर, इसने बी ने सी को दिया, नाउ इट बाउंसेस, तो एक्चुअल नोटिस विल बी सर्व टू ए। ओके। Compared to order checks, bearer checks carry extra risk. Yes. Order check and bearer check. Bearer check means जिसके पास है उसका है, तो bearer check अगर किसी के पास रहेगा तो वो काउंटर पे कैश हो जाता है, तो काउंटर पे जाके कैश ले लेगा, उसमें रिस्क रहता है। Order check, either it will be paid to the account of that person which for which the order has been made, or he may order or endorse to such to onwards. If RBI raises the SLR, SLR बढ़ाया तो बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड या इवन कैश भी रख सकते हैं। यहाँ पर कैश तो दिया नहीं है, बारोइंग नहीं बढ़ा सकते, फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग वो तो कम हो जाएगा, एसएलआर बढ़ाया तो कम हो जाएगा, मतलब कि उनको अपना फंड फिर एसएलआर के लिए यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे उसका एसएलआर बढ़ जाएगा। रेपो रेट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स नहीं, स्टैट्यूटरी जो रिजर्व्स हैं उनको एसएलआर में काउंट नहीं करते, मतलब कि आप जो कैपिटल एडिक्वेसी है आप उसमें अगर एक्स्ट्रा रखे हो तो आप उसको एसएलआर में नहीं इंक्लूड कर सकते। द डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बैंक फॉर मेंटेनिंग सीआरआर। ठीक, ओके। सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो सीआरआर में मेंटेन करते हैं, कि सीआरआर पे एक तो कुछ बैलेंस इंटरेस्ट मिलता है। देखो, इसका ऑप्शन थोड़ा सा नहीं सही है, इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको। मीन्स सीआरआर पे बैंक को मिलता नहीं, इसको बोलते हैं निगेटिव कैरी। जैसे बैंक को सीआरआर के फॉर्म में 100 रुपए आरबीआई में रखने हैं। अब ये 100 रुपए बैंक का अपना तो है नहीं, ये किसी न किसी कस्टमर का ही है। तो चलो मान लो हम ये कहते हैं कि 4% का इंटरेस्ट रेट ये बैंक दे रहा है उसको, कस्टमर को, तो 4 रुपीज द बैंक विल पे टू द कस्टमर
Further, if the customer is being paid 4 rupees, RBI is giving 0 rupees. So then there is a loss of 4 rupees. Okay, on maintaining CRR. Question 188 under Sarfasi Act, the secured creditor can enforce security interest means रिकवरी इनिशिएट कर सकता है अगर लोन अमाउंट कम से कम कितना हो, दैट इज 1 लाख। अगर 1 लाख से कम का लोन अमाउंट है तो आप सरफेसी नहीं लगा सकते हैं। इफ ए डिपॉजिटर मेंटेन्स सेवरल अकाउंट विद वन बैंक, ठीक है, डीआईसीजी कवर्स। डीआईसीजीसी क्या है? 5 लाख पर डिपॉजिटर एंड पर बैंक पर अकाउंट। इस कस्टमर ने अगर अलग अलग बैंक में रखा हुआ है अकाउंट ए बी सी में, तो ए डिफॉल्ट हुआ, बी डिफॉल्ट हुआ, सी डिफॉल्ट हुआ, तो उसको सब जगह पे पैसा मिलेगा। बट मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख ओनली। सी, ओनली वन टोटल डिपॉजिट एग्रीगेटेड इंश्योर अप टू 5 lakhs पर डिपॉजिटर, नो, पर बैंक। As of January 2024, which transaction is not typically subject to TDS? देखो, टीडीएस की गाइडलाइन आपको न्यू पढ़नी पड़ेंगी। ओके, अच्छा, डीआईसीजीसी में कौन सा नहीं है? वेट मिनट, डीआईसीजीसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि डीआईसीजीसी में कौन सी गवर्नमेंट की डिपॉजिट नहीं कवर्ड है। ओके, म्यूचुअल फंड अगर बैंक के पास अपना अकाउंट खोल के रख रहे हैं वो भी नहीं कवर्ड है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी नहीं कवर्ड हैं। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अगर अगेंस्ट कोई पैसा रखे हो तो नहीं कवर्ड है। ठीक है, नाउ if no nominee is named and account holder dies, the bank releases funds on सक्सेशन सर्टिफिकेट टू ली। ये तो बैंक में आपने किया ही होगा अगर जनरल बैंकिंग करते हैं तो। सी, एक चीज और पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन एनईएफटी? एनईएफटी मिनिमम अमाउंट कितना है? मिनिमम कुछ नहीं है, मिनिमम का कहीं डायरेक्शन नहीं है। ओके, देयर इज नो मिनिमम अमाउंट। कहीं पर 1 रुपीज लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अपने हिसाब से बोल सकता है कि भाई हम 10 रुपए से ज्यादा का नहीं, कम का नहीं भेजेंगे। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेफ्ट का मिनिमम अमाउंट कितना होगा। ओके, नाउ वी विल बी closing our session here, and there are a number of questions yet to be discussed. It is almost 170 questions there. In next session, we will, if possible, we will discuss for the, till then, have a nice